Assalamu alaikum, Ariha. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you so much for having me. It's a It's, pleasure it, being here. it's my pleasure to have you in the session. As far as this session goes, all these sessions, the main idea of having this session is to get as much knowledge from industry professional, try to understand how they are thinking and what are the right thought process when they are doing their graduation and how they are going moving forward. Before we start the session and have a healthy discussion on that, I would be happy if you can introduce yourself and थोड़ा सा बताएं लोगों के how's everything going in Aria's life, क्या चल रहा है, how's work and everything, and then we'll start the session. Oh, Alhamdulillah, everything is going so well according to my introduction. Ariha here. I have my graduation in psychology, then for postgrads in clinical psychology. Later on, I got to know that this is human development, human behavior is something I'm more interested into it. So I got to know about a particular field which calls NLP, which led me towards training and development. I worked there as well, and then moved towards business development. And but इस सारे era में I'm actually working towards human development, human brain, human behavior. So I was keep on working towards there, and that's exactly a core interest of mine. Fair enough. So let's start from the very first stage. Like you have done your graduation in psychology. So Yeah. I would like to know that what was the thought process when you think यार नहीं ठीक है यार अब मुझे psychology पढ़नी है and I want to do my bachelor's in psychology because to be very honest psychology or pharmaceutical is basically a backup plan when you don't do the MBBS part. So a lot of time when we see stories, when we see people, and when I meet people in Pakistan specifically, and specifically girls, they are more likely when they don't get selected in MBBS, they are doing pharmaceutical or psychology, and because they wanted to somewhat they wanted to be from the same field. Not I'm Yeah. not saying that psychology is more relevant to a doctor, but it's more likely it's at the end of the day you are more towards a specific pathway. So moving forward, let me know, like, tell me about yourself. What was your thought process when you were doing your when you were taking the decision? Because this is important. In Pakistan we don't have career counseling, to be very specifically, and when it comes to psychology is a field where a person should know that what he or she is learning, because it's not like you done psychology and the next day you are sitting in a bank working for 9 to 5. The Hmm. overall track path and overall pathway is totally different. So what was your thought process when you think that you want to do psychology? Is it a decision, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा भी होता है कि the decision that we are making is more likely इस पे डिपेंड करता है कि आपके चाचा मामा या आपके बड़े बहन भाई क्या पढ़ रहे हैं, ठीक I है, get it. और अगर उन्होंने वो करा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है यार इन्होंने ये पढ़ा है तो हम ठीक है हम भी यही कर लेते हैं या आपके बच्चों को भी ये करना चाहिए. So tell me about yourself, why psychology, how's the overall experience? अच्छा वेल मेरे साथ मामला ये था ऑफ कोर्स माय फैमिली हाफ ऑफ माय फैमिली एवरीवन इज डॉक्टर देयर सो आई वाज रियली क्लियर अबाउट दैट आई कैन बी एनीवन बट आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर Okay. okay I was And why extremely clear and why is that so? Because the main reason of yeah asking that's that what is I'm because going through a lot of families, when you have a lot of doctors in your families, yeah you know कि यार ठीक है यार हर कोई डॉक्टर है तो आपका आपकी आपकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से होती है. So why do you think you have a thought process कि ठीक है यार मुझे कुछ भी बन जाना है लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं बनना? well the thought process behind that because मैंने अपने घर में सबको सिर्फ एक चीज के बारे में देखा था like they don't have time for their own life. Okay, ठीक since है. my father he was a doctor he never had time for himself. कभी भी इमरजेंसी आ सकती है कभी भी they can have any kind of patient even though पाकिस्तान में कुछ ही छुट्टियां उस टाइम पे होती थी अब तो बहुत ज्यादा है ईद वगैरह पे भी he used to be with his patients. So I actually wanted to have a life which is a little bit slow, number Hmm. one, and I wanted to have a life which actually helped me to be a better version of myself. So हुआ ये था कि I eventually I was doing my uh, FSC जो हम करते हैं basically mathematics में I was going forward and वहाँ पे
I had a teacher, and वो कहते हैं ना कि उसके कुछ attributes हैं that actually really connects with me, and I later on I got to know the teacher told me that the people who actually study about psychology, वो लोगों के साथ बड़ा अच्छा interact कर लेते हैं, they are really good in communication, and that's exactly I wanted in my life. I actually wanted to work on myself because basically I belong to a family जहाँ पे लड़की के जितने अगर MBBS की भी डिग्री है ना तो डिग्री ही है बस. Girls used to stay at home, mothers stay at home, wife, they used to be housewife. So basically I had a brought up in that family. So I was like ठीक है जो मेरी हेल्प करे वो करते हैं. So moving forward, I got my admissions in psychology, and you're really right. Pakistan में ये career counseling वगैरह वाकई में नहीं होती. I never knew about के psychology actually है क्या. mm, I just knew about कि this is something आप subject जिससे आप communication पे काम कर सकते हैं and you can work on your personal development. But moving forward, when I started studying, so of course आप कोई भी degree करेंगे तो initially जो 2 years होता है it's about general subjects, and I was actually into a lot of subjects of different, like maybe some international relation, mass comm, and some other kind of school of mm, thought. And I was really furious at that time when I was doing and when I was studying psychology कि भाई यहाँ पे तो मेरी कोई communication नहीं हो रही. mm, I'm not learning anything about my behavior. I'm not learning anything about my human behavior. So what I did at that time, most of all, अब तो उस टाइम पे काफी कम होता था, but अब ये काफी सारे psychology grads start कर से, like they started volunteering. उन्होंने साइड बैकअप कुछ इंटर्नशिप्स स्टार्ट कर दी, पेड अनपेड, कि हम कुछ सीख जाए. So mm. that's what actually took me towards psychology, that I wanted to work on myself, and I never had a plan of starting something. But सही. later on, when I studied, when I learned about it, I got so much interest into it. Then I decided that okay, this is something I should work on. This is something I should work with people, and I should work people to help themselves, help others, and that actually led me to be who I am today. Fair enough. So, ठीक है, you have done your graduation in psychology. But tell me, how's the life of a psychologist look like? Like, because to be very honest, sometimes people think that after doing psychology, you are more likely uh, become consultant. मुझे थोड़ा सा बताओ कि ठीक है यार आपने 4 साल ग्रेजुएशन कर ली तो उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है बिकॉज व्हाट आई सी इज दैट you started your first internship in psychology intern in a hospital to so more likely when you're a psychologist आपका कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से कनेक्शन रहता है ठीक है Hmm. so tell me how's a life or how's a routine of a psychologist look like. Okay. So let me tell you something about, and I can only talk about a life of psychologist in Pakistan, because मेरा mostly work area इस side पे है. We can talk about other countries, other areas as well, but right now I want to stay there because we are specifically wanted to help these kind of people, the people over Pakistan. अच्छा, पाकिस्तान में जो सबसे पहली चीज़ ये है कि लाइफ ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट इट्स एक्चुअली टफ. You remember हमने जब सेशन स्टार्ट होने से पहले we have we were having a little conversation जहाँ पे we were talking about कि साइकोलॉजी पढ़ के बहुत ज़्यादा लोग उसको आगे परस्यू नहीं करते. Some people वो HR करके MBA करके कहीं और साइड पे हो जाएंगे. Some people do organizational psychology and they move to corporate. कुछ Hmm. लोग डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं. अब मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि पाकिस्तान में देर इज नो रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ साइकोलॉजिस्ट. ठीक है. ठीक है. अब जब इस तरह की कोई बॉडी नहीं है, उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है कि अगर आपने हॉस्पिटल के साथ लिंक करना है तो हॉस्पिटल्स में एक चीज़ जो कंपलसरी होती है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से आपको लाइसेंस अगर आपके पास है Hmm. तो आप तभी हॉस्पिटल के साथ ऑफिशियली कनेक्ट कर सकते हो सही. एंड हॉस्पिटल्स आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं.
अब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ऑफ कोर्स, दे डोंट वर्क अंडर दिस टर्म ऑफ साइकोलॉजिस्ट, दे ओनली कैन वर्क विद साइकेट्रिस्ट। ओके। अब साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान में क्या करते हैं कि दे मोस्टली गो के हम हॉस्पिटल्स, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में जैसे पर्सनल कोई आपके अपना कोई रेफरेंस है, आप रेफरेंस के थ्रू उनसे बात करें एंड यू गोना गो, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं शेयर बेस पे। हम्म। अब शेयर बेस के ठीक है, हमारे पास जो क्लाइंट्स आएंगे उसका 70% मेरा या 60% मेरा एंड 30% आपका, और उसमें से भी आपके वो बिल्स वगैरह सारा कुछ निकाल के सारा कट डाउन होता है। ठीक है। अब जब आप इस तरह की पेस पे होते हैं, एक्चुअली वो जो हॉस्पिटल जिसमें आप बैठे होते हैं वो भी आपको मार्केट नहीं कर रहा होता। ठीक है। पीपल डोंट नो अबाउट यू। अब जब हम लोग इस एरिया में आते हैं, जब इस टेरिटरी में आते हैं, तो एक चीज बड़ी सिंपल सी है कि हम लोग अपनी डिग्रीज पे अच्छा खासा पैसा लगा रहे होते हैं। नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट, पाकिस्तान में एक नॉर्मल डिग्री आई गेस 2 मिलियन से अबव जाती है। ठीक है। एंड जस्ट बी ऑनेस्ट, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। हम्म। द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स द पर्सन डेवलपमेंट, बट जिसको एक्चुअली काम किया जाता है, दैट्स मनी। हाउ मच मनी यू मेक, हाउ मच यू पुट ऑन अ टेबल। ओके। सो वो पैसा जो होता है ना साइकोलॉजिस्ट अर्ली एजेस में, वो बहुत कम होता है। ओके। सो उस टाइम पे आके कुछ लोग तो एंड फ्यू साइकोलॉजिस्ट व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू गो फॉर, ठीक है, हम हायर स्टडीज के लिए चले जाते हैं। ठीक है, they go for MPhil and PhD, then they start working as a lectureship, which is a uh, quite, वो कहते हैं ना, long, but at the end उसका रिवॉर्डिंग है, बट ये बहुत लंबा फेज होता है। हम्म। और कुछ लोग हैं कि ऑफ कोर्स आप फील्ड चेंज कर लो। इवन तो जब मैं कर रही थी अपने साइकोलॉजी का, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी 2-3 दफा आए थे आगे से MBA करके आई कैन मूव टू कॉर्पोरेट, बिकॉज आई न्यू कि इसके आगे जो रास्ता है थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि हम्म। मुझे एमफिल अपना करना है कंप्लीट, आई हैव टू डू माई PhD एंड देन आई मूव टूवर्ड्स एजुकेशनल साइड, विच इज ठीक है। सेफर साइड। ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो उस साइड पे चले जाएंगे, और कुछ लोग चले जाते हैं MBA करके या फिर डिजिटल मार्केटिंग करके या स्किल सेट सीख के दूसरी साइड पे चले जाएंगे। हम्म। So there is no secure future as of now of a psychologist, क्योंकि साइकोलॉजी का जो काम है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। उसका काम किस पे चलता है? क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे। अब जब क्लाइंट सेटिस्फाई है, क्लाइंट कैसे सेटिस्फाई होगा? जब आपके पास क्लाइंट आएगा, क्लाइंट का एक मसला है, एंड यू हैव टू बी सो मच इक्विप्ड टू हेल्प दैट क्लाइंट। ओके। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, यू कैन डू दैट। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि हम्म। हो सकता है ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स वाला सवाल हो, बट पाकिस्तान में वैसे ही इतने मसले हैं, ठीक है। नॉर्मल हम्म। लेमैन के तरीके से बात की जाए, लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल वेरी रेयरली गो टू हॉस्पिटल्स, ठीक है, वो वैसे भी अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन पाकिस्तान गली मोहल्ले के वो तबीब के हाँ, पास मतलब चले इट्स लाइक उसके भी रीजंस हैं, ऑब्वियसली। पीपल यूजुअली डोंट हैव a stable income, that's why they जाते wanted to go to smaller doctors or clinics in Pakistan. And हैं। to be very honest, the private sector in Pakistan as far as hospital is more likely a money making thing, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी जगह ये चीज देख रहे होते हैं, it took a lot of money, ठीक है। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे वैसे इतना इकोनॉमिकल क्राइसिस है, वहाँ पे लोग टाइम निकाल के, ठीक है, जाते होंगे, सही है, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ये बताने के भाई मेरे साथ ये मसले हैं? क्योंकि समटाइम्स अगर देखा जाए तो लोगों के पास ये एजुकेशन ही नहीं होती कि उनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है भी या नहीं, ठीक है। हम्म। हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट को इस तरीके से मेंशन किया जाता है, अगर फॉर एग्जांपल कल मैं बोलूं किसी को कि आई एम गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट, दे वर लाइक मैं शायद पागल हूं, ठीक है। एग्जैक्टली। सो मुझे ये बताओ कि यार, लाइक, इफ यू नो कि इतना आसान फील नहीं है, ठीक है, इफ यू नो कि इसका स्कोप इतना या नहीं है, ठीक है, तो वाई साइकोलॉजी, ठीक है, क्या ही फायदा हो जाएगा लोगों के बारे में पढ़ के,
सही है। हम्म। ठीक है, यू आर सेइंग राइट कि अगर किसी बंदे का दिमाग है कि सही यार मैं साइकोलॉजिस्ट पढ़ता हूँ, मैं ह्यूमन बिहेवियर पढ़ूंगा, एमबीए करूंगा, कॉर्पोरेट में चले जाऊंगा या वाइस वर्सा किसी और तरीके से चीजें कर लूंगा, तो वो ज्यादा जल्दी पैसे कमा रहा है। ठीक है। And when it comes to psychiatrist and when it comes to first year of the job in a hospital, हॉस्पिटल की जॉब वैसे भी कोई इतनी अच्छी होती नहीं, इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। ठीक है। और अगर 9 to 5 या 6 घंटे की या 7 घंटे की जॉब है भी, तो इट्स अ रोटेशन शिफ्ट। कभी आप सुबह या 12 से 6 कर रहे होते हैं, कभी 6 से 12 कर रहे होते हैं, कभी आप रात 12 से सुबह 6 कर रहे होते हैं। ठीक है। सो डू यू थिंक की पाकिस्तान में जो ऑडियंस है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनके पास ये नॉलेज है? क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन या नॉलेज दी नहीं गई है कि साइकेट्रिस्ट की जरूरत है क्या। क्योंकि हाँ, हमें पता है बुखार है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हम नॉर्मल डॉक्टर के पास चले जाएंगे। ठीक है। एंड दैट ऑल्सो वेरी हम फ्रॉम। खुद पैनाडॉल खाएंगे। हाँ, मतलब हम या तो हम खुद पैराडोल खा लेंगे या हम उन डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये भी देखना है कि पैसे कितना है। सही है। या तो ऑब्वियस ही बात है कि पाकिस्तान के मसलों को देखते हुए किसी के पास इतना पैसा नहीं कि वो कहेगा कि यार मैं किसी एक बंदे की सेटिंग पे 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपए दूं। ठीक है। और मैं जाके उसको सिर्फ वो चीजें बताऊं और वो मुझे उसका आंसर ही देगा जो कि मुझे पता ही है वैसे। ठीक है। सो हम्म। वाई चूजिंग साइकोलॉजी? ठीक है। वाई नॉट चूजिंग समथिंग एल्स? ठीक है। आप तो फिर भी आप तो बहुत प्रिविलेज थे कि आपके घर में सारे हॉस्पिटल, आपके सब सारे घर में डॉक्टर्स हैं, आपका इन्वायरमेंट इस तरीके से रहा है एंड दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। ठीक है कि चलो ठीक है यार, कर लेंगे। लेकिन आपने भी खुद कहा ना कि यार यू बिलोंग टू अ फील्ड जहाँ पे, यू बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे अभी भी ऐसी फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे लड़की कोई भी हो, कितना भी पढ़ ले, उसको घर का ही काम करना है। ठीक है। एग्जैक्टली। तो why choosing psychology? Do something else, make your life better. I'm not saying psychology is bad, psychology is good or bad. I'm just talking about कि यार at the end of the day आपको कभी ना कभी तो सोचना पड़ता है ना कि यार I need to make money. I need to make money to fulfill my dream, to fulfill what I really wanted to have in life. So, हम्म। do you think being a psychologist, it's very tough rather than अगर आप कोई और डिग्री करो तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हो? अच्छा, साइकोलॉजी में ना दो तरह की पॉपुलेशन आती है। ठीक है। एंड आई कैन आंसर योर क्वेश्चन इन दैट वे। अब दो तरह की पॉपुलेशन किस तरह से आती है। एक, हमारा कुछ स्पेसिफिक तबका है जो अपने बेटों को या बेटियों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि शादियां हो जाए। ठीक है। ठीक है। साइकोलॉजी कैसी फील्ड है? एडमिशन कुछ यूनिवर्सिटीज में अब तो इट्स क्वाइट टफ टू टेक एडमिशन, इसका काफ़ी हाई एग्रीगेट हो चुका है। बट इनिशियली वो एक ऐसा था कि ठीक है एडमिशन मिल जाएगा, एडमिशन के बाद इजी है, आपने इजीली इसमें एक डिग्री करनी है। इट्स नॉट कि आप अब इजीली कुछ भी पढ़ लो। ठीक है। एज वेयर द यू वर टॉकिंग अबाउट के ये सब्सिट्यूट एज अ सब्सिट्यूट सब्जेक्ट समझा जाता है फार्मासिटी या फिर साइकोलॉजी। कि देखें जी, हम बाद में लड़के वालों को या लड़की वालों को बोलते हैं कि जी दिमाग का डॉक्टर है। हम्म। ठीक है, बड़ी एक लेमैन लैंग्वेज। दूसरा तबका जो हमारा है, जो साइकोलॉजी में एक आता है, दे आर एक्चुअली पीपल हु आर रियली इनटू सोशल साइंसेस। ठीक है। अब इसमें ये कौन सा तबका आता है? पहली बात तो एक वो डिग्री वाला जिसको सिर्फ एक डिग्री चाहिए। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इज, आई कैन से टफ, बट नाउ इमेजिन के यू अंडरस्टैंड समथिंग जो हर किसी को नहीं पता होता। हम्म। ठीक है। how your heart operate, how your brain operate, and rather than brain, how your heart, your mind and your जो functioning है वो कैसे होती है, आपका mind कैसे operate करता है। अब ये वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी डॉक्टर को भी नहीं पता, ये एक साइकोलॉजिस्ट को पता है। हम्म। हमें like as a psychology what we have to study about human brain, we हम्म। have to study about heart functioning, and we have to study about their functioning and how psychologically it impact on someone. Okay. ठीक है। I would say that's a privilege. ठीक है। हम यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को ना सिर्फ कुछ एंड ऑफ कोर्स ये फ्रॉइड का प्रॉपर एक कोटेशन है। फ्रॉइड ऑफ कोर्स हम लोग अक्सर लोग जानते हैं, ही इज अ फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, न्यू साइकोलॉजी जो साइकोथेरेपी है वो फ्रॉइड ने स्टार्ट की थी। एंड इट इज अ कोट ऑफ हिम दैट साइकोलॉजी इज फॉर एलीट्स। ठीक है।
अब इसमें जो बंदा एक प्रॉपर पैशन के साथ आया है, हम्म। वो उन लोगों के साथ नहीं डील करेगा जिन्होंने डॉक्टर को पैसे बचाने हैं। बेसिकली हमारी सोसाइटी में भी दो तरह के तबके हैं। एक वो तबका है जिसको रोज का खाना भी नहीं मिला, फिर एक वो तबका है जिसको जरूरत से ज्यादा मिल रहा है। अब उसने कहीं तो लगाना है। मतलब साइकोलॉजी करने के बाद आपका जो मेन गोल होता है कि या बेसिकली your main audience is not the people who are thinking here what to eat. The main आई कांट people. से, बट या इवेंचुअली अगर आप उस ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर दो, यू आर इनटू मेकिंग मनी। ठीक हो बट गया, देयर सही इज है। अ वे ऑफ मेकिंग मनी विद दैट, बट ऑफ कोर्स उसमें आपको बहुत ज्यादा फ्रीबीज कोई हाँ डी, मतलब ऑब्वियसली द मेन हर एक की एट द ऑडियंस। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी ऑडियंस देखनी होती है। मूविंग एग्जैक्टली। फॉरवर्ड, सो व्हाट आई सी इज के you have like experience couple of years in doing this psychologist and working for different hospitals, and then I see that you becoming a life coach, freelance life coach। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि एज फार एज द लेमैन पीपल थिंक फ्रीलांस में आप वही सर्विसेज बेच सकते हैं जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग हो जाती है, ये या चीजें बनाना हो जाती हैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि हाउ डू यू सेल योर सर्विस एज अ लाइफ कोच, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। लाइफ कोच क्या होता है, वाई डू यू थिंक कि फ्रीलांस जाना चाहिए, ठीक है। आप अच्छा खासा हॉस्पिटल में काम कर रही थी, आपकी रूटीन सेट थी, वाई डू यू थिंक यार लेट्स बिकम अ लाइफ कोच, ठीक है। फ्रीलांस में लोगों का सबसे बड़ा मसला होता है, लोगों को ये लगता है फ्रीलांस इज लाइक फ्री, आप कभी भी काम करते हो और आपको कभी भी पैसे मिलते हैं, बट उसकी अपनी एक रूटीन होती है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही अवेलेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि देन यू नीड टू मेक अ वेरी प्रॉपर लाइन बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। जब आप 9 to 5 कर रहे होते हैं, दिस दिस आई डिस्कस दैट विद अ लॉट ऑफ गेस्ट स्पीकर्स ऑन द सेशन के व्हेन यू आर डूइंग 9 to 5 आपको पता होता है आप 9 बजे ऑफिस जाएंगे, 5 बजे तक आपको घर की कोई टेंशन नहीं, अनटिल अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। एंड द सेम गोज कि जब आप 5 बजे घर चले जाते हैं तो 5 से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक आपको पता होता है कि आपको ऑफिस का कोई काम नहीं करना होता। एंड या दिस इज हाउ लाइफ वर्क। बट बीइंग एज अ फ्रीलांसर या वर्किंग फ्रॉम होम, उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको एक बहुत बड़ी लाइन खुद से, हाँ, आपको खुद एक लाइन क्रिएट करनी पड़ती है जहाँ पे आपको अपने आप को खुद ये कहना पड़ता है कि ठीक है, दिस इज द टाइम जहाँ पे मैं काम करूंगी, दिस इज द टाइम जहाँ पे मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी या फैमिली को टाइम दूंगी, ठीक है। सो एट व्हाट टाइम डू यू थिंक switching from a job to a life coach as a freelancer, and how this life coach thing works as a freelancing platform, and why people reach out for that? Okay, before answering that, let me first explain in few words what difference between a psychologist and a life coach. I guess this is an important one, so the people can understand that. A psychologist is actually a person who can work and deal with psychological disorders. ठीक है। Okay, and according to our research, there are only 8% population of a whole world, 8% population of the whole world who are people who are dealing with psychological disorders. अब जो बाकी लोग होते हैं, they were having a normal healthy challenges, मतलब लाइफ के किसी फेज में स्टक हो गया एंड दे नीड सम हेल्प। ऐसे लोगों के लिए लाइफ कोचेस होते हैं। हम्म। ठीक है। अब लाइफ कोच क्या करते हैं, दे यूज्ड टू डू क्विक फिक्स। हम्म। Psychologists, on the very other hand, psychologists used to work with disorders, and of course इससे वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। हम्म। और लाइफ कोच में मैं आई भी इस वजह से थी, क्योंकि अगर हमारे पास पूरी दुनिया में 8% लोग हैं, ठीक है, तो एक वो जो एक अच्छी आबादी है जो हमारे पास, जो द पीपल आई वाज टॉकिंग अबाउट, द एलिट्स, दे आर हम्म। नॉट वन ऑफ दोस। They are the ones who have healthy challenges, and for that I has to become life coach, and I have explored I need to have more skills हम्म। in order to do some quick fix. Number one. Number two is कि एक normal 9 to 5 normal job छोड़ के why I introduce myself towards the freelancing projects. Number one, क्या मैंने कैसे उस पे किया। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या था कि when I was working as a psychologist, उसके थोड़े देर बाद, इवन तो मैं अभी सिर्फ ये अपनी सर्टिफिकेशन कर रही थी of coaching, pandemic happened. Okay,
And pandemic, maybe nobody have any kind of idea okay what's going to happen now. Okay, like you remember there were a lot chaos. अच्छा, पेंडेमिक का जो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो फायदा हुआ था कि बॉर्डर्स ओपन हो गए। हम्म। उससे पहले ये साइकोलॉजी या ट्रेनिंग ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था हम्म। कि ऑनलाइन सेशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, एंड इट वाज यूज्ड टू बी अ टैबू के मतलब भाई लैपटॉप पे कैसे काम किया जा सकता है भाई, ऐसे तो नहीं होता। सो वन ऑफ माय फ्रेंड, ऑफ कोर्स पहले मैं भी इसको फ्रीलांसिंग को एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग या कंटेंट राइटिंग के तौर पे यूज कर रही होती थी। One हम्म। of my friend, he actually told me कि why don't you go to these platform, actually I have started working on Fiverr. हम्म। Okay? Why don't you go, क्योंकि अभी तो उस पे बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो अपनी सर्विसेज ऑफर करें। Then there is a huge way, there are huge population जो कि ऐसे सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि people who are living abroad, there was a lot of anxiety, there was a lot of chaos, they wanted to have someone to talk about. हम्म। ओके, क्योंकि लोग घरों में बंद थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी किससे बात करनी है किससे नहीं करनी, क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, सो एट दैट मोमेंट मैंने वो एक अपनी एक प्रोफाइल सेट की। प्रोफाइल सेट करने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एट दैट टाइम and eventually got some clients as well. But being very honest, the real clients I got, that is actually through reference. Fair Okay. enough. अच्छा, Yeah. ठीक है, देन यू बिकम लाइफ कोच, यू टेल मी एवरीथिंग कि ठीक है पे क्यों बनना होता है, क्या ज़रूरत होती है। You have done remote work for a couple of years and then you move towards the 9 to 5 again working for Arslan Larik, ठीक है, Yeah. as a training manager, ठीक है। Hmm. डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रेलेवेंट होती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग, हाँ, ट्रेनिंग में भी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिनको आपको सिखाना है, आपको उनके बारे में जब तक पता नहीं होगा तो आप उनको सिखाएंगे क्या। बट like, do you think what were the steps that you were thinking before switching from 9 to 5 to a freelance and then freelance to 9 to 5? क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आपने बैठे बैठे आपने सोचा कि ठीक है यार, अब मैं ये काम कर लेती हूँ, या आप जब काम करी थी तो आपको रियलाइज हुआ कि यार ये चीज करनी है। बिकॉज Hmm. एट द एंड ऑफ द डे मिलती जुलती हैं फील्ड्स ये साइकोलॉजी से ही, बट ये सेम फील्ड नहीं है। ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड, It's a very different लाइफ field. कोचिंग इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड, Definitely. बिकमिंग अ साइकियाट्रिस्ट इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड, ठीक है। इस तरीके से हम कहने को तो मैं बहुत सारी चीज़ों को कह सकता हूँ कि यार ये वाली चीज़ करके ये भी कर सकते हैं, ये वाली चीज़ करके ये भी कर सकते हैं। बट व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग तो आप किस तरीके से उसको इवेल्युएट करके हो कि ये मेरे लिए बेहतर है। अगर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको किस तरीके से देखते हो कि यार ठीक है, आई रीवैल्यूएट कि इसमें मुझे क्या प्लस है क्या माइनस है, पैसे कितने मिल रहे हैं, क्या टाइम लगेगा, क्या मेरी लर्निंग होगी, ठीक है। बिकॉज when you move towards because now when you move towards the training thing, now you are also doing something similar to what you are already did, ठीक है। और अब हम्म, आप more likely towards training and doing consultation and all sort of things, ठीक है, ये सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। बट पाकिस्तान के अंदर ये फील्ड को इतनी इतनी बेहतरीन है नहीं, ठीक है। और अगर है भी तो 80% लोगों को पता ही नहीं है, एग्जैक्टली। ठीक है। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा, 20-25% ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन कंसल्टेशन की क्या ज़रूरत है, क्यों होनी चाहिए, कितनी बड़ी ऑडियंस है, क्या सारी चीज़ है, ठीक है। बट 80% 75% जो लोग हैं उनको तो पता भी नहीं कि ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन क्या होती है, ठीक है। लोग यही सोचते हैं कि बीइंग एज एन लिमन, लोग यही सोचते हैं कि अगर एक एचआर है, ठीक है, जो कि सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर रहा है, क्यों किसी और कंपनी को बुला के बोलेंगे कि भाई हमारे बंदों को ट्रेन कर दें, ठीक है। हम्म, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार उनकी एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ या उनकी एम्प्लॉयज की थॉट प्रोसेस किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। पीपल एग्जैक्टली। आर पीपल आर पेइंग, ठीक है, एंड यू आर वर्किंग, दैट्स सेम एज इट इज, ठीक है। जब आप बहुत ही क्रूशल जगह पे काम कर रहे हो तो बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी पर्सन बिकम अरसलान लारिक, उमर जालियावाला, जैन गोपलानी, ठीक है। they are very big names of our society and they are doing very good in what they are doing, ठीक है। बट इनिशियली उन्होंने जब स्टार्ट करा था वो बहुत अलग था, वो जिस जगह पर है वो बहुत अलग है, ठीक है।
But nowadays, every what I see is every person is becoming every person is thinking to becoming a trainer. ठीक है, to doing those things. सही है, जिस हिसाब से मार्केट ग्रो होती है उस हिसाब से उसके अंदर सैचुरेशन भी आ जाती है. अब आपको 10,000 से लेके 1,000 रुपए तक में ट्रेनर मिल जाता है. ठीक है, हाउ यू evaluated क्या क्या सही है क्या नहीं है. Why do you think a training and consultation side is good for you, and you switches toward that field? ठीक है, what were हम्म the outcomes that you think है. क्योंकि बहुत मतलब ना लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो कोचिंग, इसको अगर मैं थोड़ा सा कंबाइन करके बताऊं, ये जो ज्ञान देना है कि भाई ठीक है यार, आप ये वाली बात कर रहे हैं, ये वही वाली बात है कि इसको लोग ना बहुत उल्टे तरीके से भी लेते हैं. कि उल्टे तरीके से कैसे लेते हैं कि अगर आप किसी को कोई चीज पढ़ने का तरीका बता रहे हो, बोले आपने खुद ने तो ये करा नहीं है. ठीक है, हम्म बिकॉज वेन यू आर स्पीकिंग, वेन यू आर वर्किंग, वेन यू आर इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, यू समटाइम्स यू हैव टू टॉक टू पीपल हु आर मच मोर सीनियर इन एज, इन एक्सपीरियंस. ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से इवेल्युएट करोगे. ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट द सेम एज एज उमेर जालियावाला, जैन गोपलानी एंड अदर ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंट सर्विसेज जो दे रहे हैं अपनी, क्योंकि वो सेम एज पर आ गए. वो बोलेंगे तो छोटे सुन सकते हैं. But being at your age, working for this training and industry thing, like what do you think? What was your ultimate goal plan for now? क्या मार्केट में इसकी जरूरत है तो कौन सी इसकी नीश है, किस तरीके से पैसा कमाया जाएगा, सारी चीजें बताओ थोड़ा सा. ओके सो बेसिकली इसको ना दो तरीके से करते हैं. ठीक है, नंबर वन थिंग इज के आप किसी भी फील्ड में हो जाए, इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल योरसेल्फ, हम्म. यू आर अ फेलियर. ठीक है. being completely and being legitly honest. ओके, क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर एक वो किसी ने दुकान भी अपनी खोली हुई है ना, हम्म. उसने सामान तो बेचना है. हम्म. अगर उसको नहीं बेचना आएगा तो ऑफ कोर्स एट द एंड उसने दुकान बंद कर देनी है. सही. ठीक है, नंबर वन थिंग. So becoming a training is actually I knew about psychology. I was good with it. Then हम्म. I learned life coaching, and I used to connect psychology and life coaching together. It was a beautiful merge. हम्म. Okay. Then I learned about कि ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छा content है, मेरे पास बहुत अच्छा knowledge है, people are really happy with me, but I'm lacking somewhere. The first lack is I don't know how to pitch myself. हम्म. Okay, उसका ये होता है कि या तो आप you keep on working or you gonna go to somewhere where you have a lot of opportunity to pitch. हम्म. Okay, that's number one. Number two is जिस एरिया में मैंने काम किया, देखो लाइफ कोच दो तरह से होते हैं आजकल ना. पाकिस्तान में दो तरह के लाइफ कोच हैं. एक वो है कि जिसने जी यूडेमी से पढ़ा, ठीक है, या उसने कोर्सेरा से एक छोटा कोर्स किया, या फिर उसने कहीं से भी कोई भी एक कोई कर ले, उसने कहा जी मैं लाइफ कोच हूँ. या तो बिल्कुल. किसी ने कुछ भी नहीं. मुझे पता कैसे चलेगा, मैं एज अ लेमैन जानना चाहता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे लाइफ कोच की जरूरत है या नहीं है. ठीक है, देखो भाई, बात बड़ी सिंपल सी है मतलब कि मैं जब आपकी बात बिल्कुल समझ रहा जिंदगी हूँ. में आगे जा रहे हो, मैं लाइक आई फॉर टोट एग्जांपल मैं स्टक हूँ, हाँ या अगर ठीक मैं है. स्टक नहीं भी हूँ, मैं काफी अच्छा ग्रो कर रही हूँ, लेकिन मैं एक ही पॉइंट पे ग्रो करी जा रही हूँ और मुझे उससे थोड़ा सा एक ब्रीच करना है. ठीक है, और वो मेरे से नहीं हो रहा. आई नीड अ लाइफ कोच. क्यों कि I देयर इज. I'm still not getting the point. So for example कि आई एम अ मोशन डिजाइनर. ठीक है, हाँ. फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे स्टक हो जाता हूँ अपनी फील्ड के अंदर. लाइफ कोच क्या कर लेगा? लाइफ कोच को ये नहीं पता ना, वो मोशन डिजाइनर है ना, उसको प्लानिंग का पता है ना, उसको स्ट्रेटेजीज का पता है ना, उसको ये पता है कि भाई वो ठीक है साइकोलॉजिकल आप सपोर्ट कर सकते हो. ठीक है भाई, सही है. अब मैं किसी ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, मेरे मेरे अम्मा अब्बा गुजर गए या XYZ, मेरी फैमिली में कोई हादसा हो गया, मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैं बोल सकूं या जो मुझे समझ सके. ठीक है, वो या समझ में आता है. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट कि हाउ समवन कैन कोच यू इन समथिंग जिसने वो चीज करी नहीं है. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का बैकग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड है. ठीक है, और उसके बिजनेस में मसला है कि यार मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूं. ठीक है, तो लाइफ कुछ ऐसा ही क्या अलग अलग कह देगा जो उसको वैसे नहीं पता होगा. क्योंकि अगर मैं किसी. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज कि आप हर बंदे को लाइफ कोच एक तो समझना छोड़ दें. हम्म. ठीक है, कि आजकल जो हर कोई अपने साथ लिख देते हैं ना लाइफ कोच, दैट्स नॉट व्हाट एग्जैक्टली लाइफ कोच मेंट बाय. हम्म.
ठीक है, नंबर वन थिंग। नंबर टू इज के यू शुड बी रियली गुड विद मोशन डिजाइनिंग। ठीक है, हम्म। अगर आपने उसमें स्टक हो तो ऑफ कोर्स व्हाई शुड यू गो टू लाइफ कोच? यू शुड गो टू अ समवन हु इज एक्सपर्ट इन मोशन डिजाइनिंग और वो उसमें बताएगा। हम्म। अगर तो आप जिंदगी में स्टक हो या जिंदगी के किसी ठीक एस्पेक्ट है, में ठीक। stuck हो, तो लाइफ कोच तो उधर आएगा। ऑफ ठीक कोर्स हो एज गया। अ मोशन डिजाइनर इट डजंट ठीक हो वर्क गया, ठीक हो, नहीं बिकॉज़ जैसे अभी आपने बोला माइंडसेट। था ना, मैं इसी को सेकंड कह रहा था कि इट्स अ वेरी स्मॉल नीश। आपने जैसे बोला, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको ये नहीं, एज अ लेमैन आपको ये नहीं पता कि आपको लाइफ कोच की कब जरूरत है। सेकेंडली, आपको ये नहीं पता कि आप जिसको रेफर कर रहे हो और जिसके पास आप जा रहे हो वो इतना केपेबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे आपने हम्म। बोला, क्योंकि अब हर कोई अपनी चीजें कर रहा है। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आई वांटेड टू डिस्कस के हाउ दिस ट्रेनिंग, consultation, the company that you are running as a founder is called Growth Space, and I'm pretty much sure it's more likely giving training sessions and certifications and all. Uh, how does model work? Okay. I know how the business model work for different businesses. Okay. It's हम्म। about selling your services and getting paid. Okay. बट ये वही वाली बात है कि अगर मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज आटा और दाल की दुकान खोल दूंगा तो शायद पाकिस्तान में वो ज़्यादा चलेगी rather देन आपके ट्रेनिंग कंसल्टेंट से। आई एम नॉट हम्म। सेइंग कि उसकी उसके अपनी जगह एक नीश नहीं है। ठीक है। बट 2025 हर दूसरा बंदा कोच है, जैसे आपने बोला। 2025 यू कैन कम अप विथ मल्टीपल मल्टीपल कंपनीज जो कि सो कॉल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी दे रही हैं। उसमें आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। ठीक है। आप पिछले 2 ढाई साल से ये काम कर रहे हो। मुझे ये बताओ कि यार 2 ढाई साल में आपको क्या लगता है कि यार ये वो पॉइंटर्स हैं कि अगर अरीहा को आज से 2.5 साल पहले पता होता तो आज उनका बिजनेस बहुत अलग से होता। या अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहे तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैसी बहुत नीश मार्केट है ना। ये वैसी बात कर दी कि पूरे पूरे मुल्क में किसी के पास बाइक लेने को पैसा नहीं है और मैं गाड़ी लॉन्च कर दूं। ठीक है। हम्म। और फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार मेरी कौन सी नीश है, कहाँ कौन से इलाके में कौन सा बंदा है जो गाड़ी खरीदना चाहता है ताकि मैं उसको सेल करूं। बिकॉज एग्जैक्टली। इट्स मोर लाइकली सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। हम्म। अगर आप कोई चीज की सप्लाई कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके पास उसके आंसर्स हैं डिमांड के। अब आप 2.5 साल से एक चीज चला रहे हो, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, आपने हर चीज देख ली, आपने हॉस्पिटल में काम करके देखा, आपने 9 to 5 करके देखी, आपने दूसरे कंसल्टेंसीज के साथ काम करके देखा। तो अब मुझे बताओ कि यार क्या लगता है कि कौन से ऐसे 5-6 टिप्स हैं जो आपको लगता है कि यार 2 ढाई साल लगाने के बाद, अपना ब्रांड बनाने के बाद, ये वो चीजें जो लोगों को पहले कर लें तो उनको लॉन्गर टर्म में हेल्प आउट करती हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इज अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। ठीक है, बात ये है कि पाकिस्तान में बेशक आजकल हर दूसरा बंदा लाइफ कोच है। उसके दो हम्म। फायदे हैं। हम्म। पहला फायदा तो ये है कि लोगों को इस फील्ड के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, when the people are listening about one thing again and again they become curious। ठीक है, ठीक होगा। अब अगर वो क्यूरियस हो गया ना तो वो उसके बारे में ढूंढेगा। अब इसके पास हमारे पास जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इतने ज्यादा लाइफ कोचेस में से ऑथेंटिक कम है। हम्म। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ऑथेंटिसिटी पे काम करें, अपने स्किल सेट पे काम करें, अपने अपने आप को एक्चुअली कैपेबल बनाएं रादर देन कि अपने नाम के साथ टाइटल्स जोड़ते रहें आप। ठीक है, आपसे बात कोई करे तो उसको पता चले भाई किसी से बात की है। ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाड़ी आए, ठीक है, आपको कोई बाइक नहीं खरीदा, पर वो जो गाड़ी वाला है ना वो उस एरिया में अपनी गाड़ी नहीं लॉन्च करेगा जहां पे लोगों के पास बाइक खरीदने के भी पैसे नहीं है। वो अपनी गाड़ी कहाँ लॉन्च करेगा? जहां पे लोग एक्चुअली खरीदते हैं, वेयर पीपल हैव दिस बाइंग पावर। ठीक है, इवन दो दाल चावल की दुकान क्यों चलेगी? दाल चावल की दुकान इसलिए चलेगी क्योंकि हर एक की नीड है। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि स्टेक्स की नीड नहीं है। बट वो एक स्पेसिफिक तबका है। ठीक है, आपको अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फिर उसके साथ आप वो स्पेसिफिक तबके के जाके ये नहीं कह सकते कि जी स्टेक कितने किलो है आके खा लें। हम्म। वो लोग फिर खुद आते हैं। ठीक है, पीपल विल कम टू यू, दे विल व्हाट दे कैन डू, पहली दफा ट्राई करेंगे। हम्म। उस पहली दफा के ट्रायल में
अगर तो आपने अपने टेस्ट वो स्टेक उनको पसंद आ गई, they will recommend people, people will keep coming and the business will go on. ठीक है, और उसी एरिया में वो चलेगा और अच्छा चल जाएगा. लेटर ऑन ऑफ कोर्स आप दूसरे तबके के लिए कुछ करना चाहते हो, आप कर सकते हो. Hmm. ठीक है, आप दूसरी ऑडियंस के साथ करना. बट इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस का जो सॉलिड मॉडल होता है कि दैट इज एक्चुअली हाउ यू गोना मेक मनी, और इसमें कैश रिवॉल्व कैसे करना चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. आप अगर मैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट, अगर मैं लाहौर में हूँ और मैं बेसिफिकली अगर हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, दिस नॉट ओनली ओके, हर तरह की ट्रेनिंग नहीं है. वी डोंट Hmm. पिच companies, that's a bit specifically D2C, and this is actually specifically for the people who are highly interested for their personal development, number one, Hmm. and the people who are interested to become authentic life coaches. Okay, because we have some authentic resource of making and certifying people. There's a specific training and specific way of doing that. ठीक है. अब ये है कि पाकिस्तान में बेशक हर कोई लाइफ कोच है, हर कोई ट्रेनिंग कंपनी है, बट NLP एंड हिप्नोसिस की ट्रेनिंग कंपनी सिर्फ 4-5 है. Hmm. तो वो ऑटोमेटिकली वो एलिट्स में चला गया. ठीक है. हमारे में ये होता है कि people used to come to us and they used to ask for the questions because they want it. Okay, so there is a specific a little difference of business model. तो उसके लिए एक चीज है, आप अपने स्किल सेट पे काम कर लें, Hmm. रादर देन कि आप अपने नाम के साथ टाइटल्स लगाते रहें कि जी मैं लाइफ कोच भी हूँ, मैं स्कॉलर भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, ये भी हूँ, जब लोग आपसे बात करें आपको कुछ भी ना आ रहा हो. ठीक है. दूसरी बात है, बी वेरी ऑनेस्ट, अंडरस्टैंड अबाउट कि आपको पैसा कहाँ से आ रहा है. अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, आई एम सॉरी, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा. ठीक है, ये चीजें आप स्टार्टिंग में इस चीज को करें. आपको ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, देयर माइंडसेट एंड हाउ यू गोना मार्केट फॉर देम. ठीक है. अगर मेरी ऑडियंस जेन जी है और मैं पुराने तरीके से अखबार में पब्लिश कर दूं अपना एड, तो वो पढ़ती भी नहीं है. दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ मार्केटिंग. I will lose my client. So what I'm gonna do, I will go to the platform where exactly Gen Z is, and I will market there. अगर मुझे corporate को pitch in करना है, I will market over LinkedIn. ठीक है. अगर मुझे कुछ ऐसी ऑडियंस जैसे जिसमें हाउस वाइफ या होंगी, मैं इंस्टाग्राम लिंक या फेसबुक पर चले जाऊंगी. सो हम लोग एक डिफरेंट अपने अपने प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल क्लियर कर लें. आपने किस किन चीज़ों पे जाना है, किन एरियाज में आपने करना है, किस प्लेटफॉर्म पे आपने करना है, एंड देन वर्क ऑन योर कंटेंट. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, यहाँ पे एंड एक्चुअली आई वांट टू एड्रेस दिस इशू कि ये जो लाइफ कोच बन जाते हैं फिर इनके पास क्लाइंट्स नहीं आते, देन दे एक्चुअली गो टू सम अदर लाइफ कोचेस, नॉट लाइफ बिजनेस कोचेस, जो उनको सेल्स के स्ट्रैटेजी सिखा रहे होते हैं. और उनके साथ जब क्लाइंट आते हैं और उनको लोगों को अपने मसलों का हल नहीं पता होता है, क्योंकि अगले बंदे को कुछ आता नहीं है. उसने उसके पास बस पैसा है, वो बिजनेस कोचेस को देके बस सेल्स सीख रहा है. प्लीज प्लीज अपने स्किल सेट पे काम करें. ठीक है. यू आर डीलिंग विद ह्यूमन, दैट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. Fair enough. Fair enough. I think we have discussed very good pointers, Ariya. Thank you so much for giving the real insight of the psychology and how this training business model work. So I'm pretty much sure a lot of people will have an idea, and if anyone wants to reach out to you, they can reach out to you on LinkedIn, and I'm pretty much sure you are available for them. So thank you so much for your time. It's a pleasure to have you on the session. Thanks for having me.